ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਯਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾਣੇ। ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਕੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੀ ਰਾਣੇ। ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਕੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੀ ਰਾਣੇ। कल जुग है कल जुग गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੋਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਪਿਓ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਰਿਟਾਇਰ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ। ਐਸਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਆਈਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਧਾਕੜ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਠਸਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ। ਪਿਓ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਐਮਐਲਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਡਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਅੱਬੂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵਾਇਰਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम, यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी छोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया टेम्पो मॉडल का। ਦੋਸਤੋ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਈਓ ਸਹੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬਹੂ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੋ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਬੇਗਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਗਿਓਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੌਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਤੇ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਵਿੰਦ ਜਾਂ ਸਸੁਰ ਸਹੁਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕਿਓ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਕੀਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਰਗੇ ਸਹੁਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡੋਪਟਡ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦ ਬਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਜਾਇਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਗੂਗਲ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤਾ ਦੋਸਤੋ ਜਾਇਦ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਲਾਲਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੋ ਦਿਓਰ ਜਾਂ ਜੇਠ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਵੈਧ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕੀਲ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਪਣਪ ਸਕੇ। ਆਜੋ थोड़ा सुनते हाँ। उसकी बहन प्रोस्टिट्यूट के साथ घर से भाग गई थी। मेरे पेरेंट्स उसकी शादी के खिलाफ थे। उसके पास कोई पैसा नहीं था। न जाने कहां से वो अपना घर चलाती थी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता लेकिन शायद वो भी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है। मेरी बहन मेरे पैसे के पीछे पड़ी है। झूठा वूठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे और कहते रहते हैं कि तूने जो करना है कोर्ट में केस कर ले, तेरा कैरेक्टर हम इस्टेब्लिश कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस पॉइंट पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तो अगर कैरेक्टर इस्टेब्लिश की बात है तो मेरी बहन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ घर छोड़ के भागी थी और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कोहैबिट कर रही थी। ठीक है, ना इसको घर वाले पैसे भेजते थे ना कुछ, तो इसके बॉयफ्रेंड इसको पैसे भेजते थे या कहाँ से इसको पैसे आते थे मुझे नहीं पता। ये घर छोड़ के भागी थी फॉर टू मैरी समवन, है ना, जिसके खिलाफ मेरे घर वाले खिलाफ थे। देन कि कहते थे कि वो उसके लड़का गलत है या वट एवर, आई डोंट नो किस लिए मना करते थे। तो उस टाइम मैं लॉ कर रहा था 2012 से सोनीपत से। सो एनीवेज ये शी यूज्ड टू कोहैबिट विद प्रोस्टिट्यूट्स। डज दैट मीन कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट? आई डोंट नो, कुड बी नॉट। कहाँ से इसका खाना आता था, कहाँ से इसका रहना, इसने मतलब कहाँ से, हाउ डू यू गेट द मनी विदाउट वर्किंग? इसकी कोई स्किल्स है नहीं, इसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो व्हाट डज दैट मीन? प्लस
जो जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, अफेयर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ, दिस इज ऐसा कुछ नहीं है। आई थॉट अबाउट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को, सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ। Every time I'm just lost in thought. So when I realize things and I connect the dots, I feel like he knew her already, है ना? Because first day पे she didn't let me touch her, and next morning she was taunting me. इसके घर वालों ने आना था तो मैंने पूछा नहा लिया आप, तो she taunted me क्यों इकट्ठे नहा, मेरे साथ नहाने का मन था क्या, मेरे साथ नहाना था क्या? तो उस पर भी फिर लड़ाई हुई, मैं इसके घर वालों से मिला नहीं, ठीक है। एंड फिर मैं अपने रूम में रहा, फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन शी कम्स इनटू माय रूम, नंगी हो जाती है, खुद ही लेट जाती है मेरे साथ, है ना। तो दैट्स हाउ वी कंज्यूमेटेड आवर मैरिज, जो भी माय मैरिज और व्हाट हर मैरिज विद, आई डोंट नो, मैं जो पागल हो रहा हूँ यहाँ पे। मेरे से शादी नहीं हुई इसकी मेरे बाप से शादी हुई है, ठीक है। एंड नाउ देयर एस्टैब्लिशिंग अ फॉल्स नैरेटिव कि मैंने पहले ये कहते थे मैंने हलूसिनेट किया, फिर उसकी आई मेड द मिस्टेक्स ऑफ आर्ग्यूइंग विद देम, है ना। मैंने उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दी अपनी, वरना ये कोर्ट में वहीं पे फेल हो जाते, बिकॉज पहले ये कहते थे कि यू हलूसिनेटेड, एंड देन आई ब्रॉट अप द पॉइंट दैट व्हाई एम आई बीइंग, इफ आई हैव हलूसिनेटेड सच अ बिग इवेंट, है ना, किसी ने हलूसिनेट कर लिया अपने रूम में तुम्हारे बाप को और तुम्हारी बीवी को इकट्ठे नंगे, तो ऑब्वियसली उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। ही शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव, है ना। व्हाई वाज आई बीइंग अलाउड टू ड्राइव माई सेल्फ टू द कोर्ट एंड बैक, हाँ। एंड ये आर्ग्यूमेंट गलती से मैंने इनके सामने रख दी, फिर इन्होंने फिर कहने लगे तो डिल्यूशनल, जो भी इनकी नैरेटिव इनका चेंज होता रहता है ना, स्टोरी हर वक्त जब भी मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ कोई वैलिड। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे को इन्होंने अबडक्ट करा के लिटरली विदाउट माई कंसेंट मेरे को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में बंद रखा, जो कि प्रीवियसली मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके आया था, एंड आई वाज क्लीन, आई वाज ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड उस हेंस जो इनकी दूसरी कन्फाइनमेंट थी वो इट इज़ टोटली लीगल, बिकॉज मैं नशे में नहीं था, कुछ नहीं था। अगर मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, आई शुड हैव बीन सेंट टू अ मेंटल हॉस्पिटल, नॉट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। ना मेरे को डॉक्टर को दिखाया गया, ना कोई डायग्नोसिस हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। और वहाँ पे इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने पिछली बार भेजा था ना सेंटर में, कहते हैं शेयर करो अपनी भावना को, शेयर करो। मैंने शेयर कर दिया कि क्यों हूँ मैं यहाँ पे, क्यों नहीं हूँ, कि मैंने अपने बाप को और बीवी के अफेयर को डिस्कवर कर लिया है, एंड घर पे ऐसा माहौल है, ये है वो है। एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कब तक रखेंगे कब तक नहीं, एंड मैं बहुत डरा हुआ था। तो ये बात इन घर वालों तक पहुँचती है, एंड दे इमीडिएटली पुल मी आउट ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर, है ना। सो एनीवेज उसके 2-3 महीने बाद अराउंड आई वाज बैक इन जून 1 आई वाज बैक। May 9 को मेरा फाइनल एग्जाम था, May 9 को इन्होंने उठवाया, वो भी पुलिस से उठवाया, क्या कि तुम्हारी गैंगस्टर्स से ताल्लुकात है, हमारे साथ आओ, है ना। दिस इज अबडक्शन बाय डिसीट, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो कि बाय फोर्स होती है। नेक्स्ट टाइम दे डिड बाय फोर्स, एंड विच वाज in 100% in violation of law. I was neither high nor using any substance, nothing doing. मैं अपनी बुक पढ़ रहा था, बाहर बैल्कनी में बैठा, इंस्पेक्टर आता है, मेरे को उठा के ले जाता है इनका, ही इज यूजिंग द स्टेट मशीनरी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, नथिंग। पंजाब के बंदे पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी बुला के हरियाणा में बुलाता है, मुझे उठवा देता है, अपने गनमैनों को यूज करता है, मुझे उठवा देता है, और फिर टॉन्ट मारता है पीछे से कि तू बहुत बड़ा IPS ऑफिसर है, तेरे से अट्रैक्ट होंगी लड़कियां। मतलब ही इज वेरी प्राउड कि ये बच्ची को, मेरी बीवी को, एक यंग लड़की को इसने फंसाया हुआ है, उसके साथ इस गंदे संबंध, इसके घटिया आदमी के संबंध है। ही इज वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि बड़ी अट्रैक्ट होती हैं इससे लड़कियां। मीनवाइल शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, भाई साहब, शी हैज बीन अ प्रोस्टिट्यूट, दैट्स हाउ शी इज मेट हिम, एंड दिस इज ओनली माई गेस, बिकॉज अदरवाइज हाउ वुड ही हैव नोन हर, है ना, हाउ कुड ही हैव नोन हर। तो एनीवेज, तो you know I'm in stress all the time, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं should I clear my bar exam then file for a protection petition and all। मेरे नाम की एजेंसी, उससे पैसे आते हैं, वो ये स्टेट मशीनरी गनमैन को यूज करके जबरदस्ती मुझसे छीन लेते हैं, मेरे तक पहुंचने नहीं देते हैं पैसे, मेरे हाथ में नहीं आने देते हैं, एंड देन
they behave like they're concerned for me कि इतनी बड़ी रकम हम तेरे हाथ में कैसे दे दें, तू नशे कर लेगा, ये कर लेगा. Meanwhile, I've heard my sister and my mother in my father's room, overheard them talking inside, planning to take care of me कि मेरे पे झूठा केस कराना है, क्या कराना है. And my father is suggesting we'll do it after elections, we'll do it after elections. ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ. ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ. ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ. ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. जेपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब की रज़िया सुल्ताना मैडम, उनके बेटे अकील अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर पे. घर इनका MDC पंचकुला में है. तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब FIR दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के, और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रज़िया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, उनके अगेंस्ट की. देखिए, पोस्टमार्टम में अभी प्राइमा फेसी कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी. विसरा सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं एंड वो FSL भेज दिए गए हैं एनालिसिस के लिए. एक बारी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस चीज को सर्टेन किया जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा. और हम भी मामले की संजीदगी को देखते हैं. एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली इन्वॉल्व है, तो वी आर कमिटेड कि एकदम फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस पर ही बेस करेंगे. चाहे वो सारी जो वीडियोस हैं, चाहे जो पिक्चर पोस्ट हैं, उनकी जेन्युइननेस हो, टाइमलाइन को एस्टैब्लिश करना हो, विसरा सैंपल्स की रिपोर्ट्स हों, जो मेडिकल एविडेंसेस हों, CCTV कैमरास हों घर के आसपास की, और जो मृतक है अकील अख्तर, उनके फोन में भी अगर कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड्स, कुछ चैट्स, कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखते हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा. और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन ताकि एकदम पूर्ण रूप से अच्छे से एकदम डीप और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करने के लिए हमने एक अपने सीनियर ACP रैंक ऑफिसर के अंडर SIT बना दी है. जी, ये शमशुद्दीन के द्वारा जो कंप्लेंट मूव की गई पुलिस को, उसके बेसिस पर ही FIR की गई है. एंड इनका बैकग्राउंड मैं बता दूं, इनका एज सच कोई फैमिली टाइज नहीं है मृतक की फैमिली के साथ, पर ये पीछे से मलेरकोटला के हैं. जो मृतक की मदर हैं उनका वहां पर रहने का फैमिली रहती है. उन सभी चीजों को फैक्टर इन करते हुए अगर कोई पास मेडिकल हिस्ट्री भी है तो उसके रिकॉर्ड्स भी हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और उसको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे. ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਜੋ ਜਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. आरोप प्रत्यारोप मेरे लिए वो मैटर नहीं करते, वो मेरे जहन के कहीं बहुत पीछे हैं. किसी बाप के लिए एक जवान औलाद, अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता. अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे. तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते. मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख जिंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता. मेरी एक औलाद थी, वो चली गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई. मैं उसी गम में मुब्तला हूँ. मैं 6 दिन से, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ले रहा था. मैं कल ये जो हरकत हुई सारी, उसके बाद मैंने अपने अंदर का जो बाप था उसको सुला दिया कि बाप को फिर जगा लूँगा. पहले मैं जो ये नीची सोच, छोटी घटिया हरकतों वाले लोग हैं,
इनका मुकाबला करूं। मैंने अपने अंदर का सोल्जर जता दिया, क्योंकि बेसिकली मैं सोल्जर, आई हैव बीन ए सोल्जर ऑल माई लाइफ। तो अब मेरे अंदर का सोल्जर बोल रहा है। कल से मेरे 6 बजे से शुरू होता हूँ 11 बजे तक, ऐसे ही मेरे मुंह के सामने लगे होते हैं। देखिए, औलाद ऐसी चीज़ है, कोई भी बाप हो, सारे आप में से बाप हैं। बच्चा कितनी भी गलती करे, हम पर्दा डालते हैं ना, हम सब पर्दा डालते हैं, घर में बैठ के उसको जो मर्जी समझाएं, पर दुनिया की नज़रों में पर्दा डालते हैं। हमारे लिए वो इतना आसान नहीं होता। आपके सबके घरों में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं। मेरे घर में तो 40 लोग होते हैं, 10 काम करने वाले होते हैं, 20 सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो हमारे घर उस सेंस में कोई प्राइवेसी नहीं रहती, उन सबको पता होता है। और वो उतनों को आगे बताते, वो आगे बताते हैं, तो अंदर खाते सब पता होता है। पर माँ बाप अपने मुंह से नहीं कभी कहता कि मेरी औलाद बुरी है। अब ये एक बहुत दुखदाई और दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, कुछ लोगों ने इस पर घटिया सियासत करने की बात की, तो इसलिए मेरे अंदर का सिपाही निकल के आया। मैं उनका मुकाबला करूँगा, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे ना कोई डर है, ना मुझे कोई भय है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है। कोई हमने गलत काम नहीं किया है, हम इनका मुकाबला करें। आप मुझे बताएं, आप सारे बैठे हैं लोग, आपने कभी सुना है किसी बाप ने बेटे को मारा? मैं डेली अखबार में पढ़ता हूँ, डेली उठता हूँ, ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ के, और इंडियन एक्सप्रेस। पंजाब में ऐसे माहौल है, बहुत सारे बच्चे नशे में मुलविस है। तो डेली ऑलमोस्ट मैं फिर अपनी फैमिली को बताता हूँ कि देखो, आज वो बच्चा नशेड़ी था, उसने अपनी दादी को मार दिया। पैसे मांगते नशे के लिए, माँ बाप चाहते हमारा बच्चा नशों से निकले, पैसे से मना करते हैं। आज बच्चे ने दादी को मार दिया, आज दादा को मार दिया, आज बाप को। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि किसी बाप ने बच्चे के नशे की वजह से उसको मारा हो, नंबर 1। और ऐसा कोई बाप हो जिसके साथ माँ भी शामिल हो बच्चे को मारने में। आप याद करो, पूछो अपने बुजुर्गों से, पूछो पिछले 100 साल की पूछो कि माँ बाप दोनों मिले हों कत्ल करने में, ठीक है। और इससे आगे बढ़ो, ऐसा केस जिसमें बेटी भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो, बाप भी माँ भी, और उसको मार रहे हैं, और बहू भी। दुनिया में एक केस दिखाओ मुझे। तो ये बहुत फिजूल की वाहियात बात है। बेटे में कितनी भी कमी हो, बाप का दिल बाप का दिल होता है। मेरे बच्चे ने 18 साल से वो इसमें मुब्तला था, इस बीमारी में। पंजाब के हज़ारों बच्चे इसमें मुब्तला हैं, हज़ारों घर उजड़े हैं, कितनी माओ के लाल खो गए हैं नशे की। बॉर्डर के उस पार से नशे आते हैं, बहुत डेली आप अखबारों में पढ़ते हैं। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ। ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਦਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵੱਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੂਹਰੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਅੰਜਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸਤੋ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਕੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੂਲ ਜਲੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਧਨਾੜ ਰਸੂਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ, ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਵਫਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ رائے ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। बेटे का जनाजा बाप के कंधे पे हो, उसका वो बहुत बड़ा गम होता है। पिछले 6 दिन से या 7 दिन से मैंने कोई कॉल नहीं ली। इसी हालत में उस बच्चे ने ये वीडियो बनाया। उसकी माँ और उसकी बहन उस दिन दिल्ली थे 27 अगस्त को किसी मीटिंग में, सियासी मीटिंग में। मैं मलेरकोटले में था। बच्चे ने बना के उस हालत में, दिमागी उस स्टेट ऑफ माइंड में ये अपलोड की। उसके बाद उसने डाउनलोड कर दी। बीच में हमारे यार दोस्त बहुत हैं, चाहने वाले, शमशुद्दीन जैसे, उन्होंने वो डाउनलोड कर ली। फिर ये हादसा हो गया 16 तारीख को। जब हम लोगों ने देखा कि 16 की शाम को मैं और मेरी वाइफ डिनर कर रहे थे, मेरी बेटी मेरी बहू के साथ, बच्चों के साथ बैठे थे, तो हमने देखा आखिर आज क्यों नहीं उठ जाता था शाम के टाइम। वो बहुत दिन रात पर बच्चा जागता था। तो 8:30 बजे डिनर की टेबल से उठे। हमारा कमरा आमने सामने है, इधर मेरा इधर आकिल का है, बीच में बहुत बड़ी लॉबी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो मुझे तो था ये कि मेरे घर में तो 18 साल से चल रहा है, ऐसे ही उठाते हैं। मैं अपने कमरे में जाके कुछ करने लगा। इधर ये मेरी बेटी और मेरी वाइफ उसको आवाज़ें देने लगी, दरवाज़ा पीटने लगी। वो अक्सर रेस्पॉन्ड नहीं करता था। तो फिर ये डराती थी कि पुलिस को बुला रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर भेजेंगे। ये मैं 14 को दिल्ली से आया और मेरी बेटी, मेरी वाइफ ने बताया कि ये अब ब्यूपिनोरफिन ओवर कर रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। तो 2015 को, 14 को मैं, 15 को मेरी वाइफ और बेटी ने जाके ऐसे ही 8 बजे शाम को कि अगर नहीं निकलेगा पुलिस आ रही है, डी एडिक्शन सेंटर जाएगा तो खाना खा ले। उसने दरवाजा खोला थोड़ा सा, कहते मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, बिरयानी। बिरयानी उसने ऑर्डर की, उस पर जो ये क्या एप्लीकेशन वगैरह होती है जोमेटो पे, वो अक्सर जोमेटो पे 99% उसी पे ऑर्डर करके रात भर खाता रहता था। ये 15 की बात है। 16 में फिर एज यूजुअल उसके दरवाजे तो बंद ही रहते थे। 16 की शाम को 8 बजे मैं और मेरी वाइफ डाइनिंग टेबल पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खाना खाया। खाना खाते वक्त हम दोनों ने डिस्कस किया। मैंने कहा देख तेरा माँ का दिल जो है ना थोड़ा सख्त कर, आकिल अब खाना भी नहीं खा रहा है, कम खा रहा है, और मुझे डर है मेरा बच्चा ओवरडोज ना हो जाए, तो थोड़ी सख्ती कर ले, मुझे इसको सेंटर भेजना पड़ेगा। शी एग्रीड। तो 8:30 बजे तकरीबन 8:25 पे मैंने दरबारा सिंह है हमारा पीए, मैडम का पीए मलेरकोटला, उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि सुबह एक चिम्मा जगह पड़ती है सुनाम के पास, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, बहुत अच्छा लोगों ने बताया। पहले मैं दूसरी जगह भेजता था कि आप गुग्गी को लेके, गुग्गी यहीं पे है लड़का, वो इसको नहीं पता होगा,
मैंने कहा सुबह 6 बजे वहां चले जाओ, उसकी हालत बताओ मुझे क्या है, उसका फेस स्ट्रक्चर क्या है, उनको कहो मैं दुगने पैसे दूंगा, तिगने दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को खाना बाहर से मिलना चाहिए, जोमेटो। मैंने तो उसका वहां इलाज करना है, जो दवाई ले वो। ये बात हो गई। मैं अपनी बेटी से भी शेयर नहीं कर पाया। मैं अभी जहन में वर्कआउट कर रहा था कि मैं वो सुबह उनकी रिपोर्ट आएगी, यहाँ से अपनी गाड़ी में कमांडोज वाले में जाके मैं और मेरी वाइफ छोड़ के आए। मेन वाइल 8:30 उन्होंने देखा, आज तक अभी उठा क्यों नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठ गया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, 5-4 मिनट कोई रिस्पॉन्स नहीं आई, धमकी भी दी। फिर मेरी बेटी उधर से जाके ऊपर से एक बालकोनी जाती है मेरे घर के साइड में पीछे, उसमें को चढ़ के पीछे गई। पीछे का दरवाजा बंद था लेकिन चटकनी नहीं लगी। वो अंदर गई तो ही वॉज नो मोर। उसने दरवाजा खोला, फिर घर में क्या होगा, जिसने भाई देखा, एक बेटा हो, मातम जो होता है। मुझे तो पता था बच्चा, पता नहीं घंटे पहले हो चुका था, 2 घंटे अल्लाह जाने, 4 घंटे या 10 मिनट। वो ठंडा था लेकिन माँ बाप को चैन नहीं आता, हॉस्पिटल लेके गए फटाफट पंचकूला। उन्होंने ईसीजी वगैरह की, वो तो था ही नहीं। फिर ये कहते जी आपने पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैंने कहा मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं समझता हूँ हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। और ये वीडियो भी वायरल हुई थी कि बहुत सारे कुत्ते हैं जो भौंकेंगे। तो कल तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की कब्र खोदे, मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा। इनकी मर्जी के खिलाफ मैं पोस्टमार्टम कराया। रात को मोर्चरी में बॉडी रही, सुबह पोस्टमार्टम हुआ, 11 बजे बॉडी मिली, 11:30 लेके आए, दफनाया। उसके बाद मैंने कोई कॉल ले ली। आज मैं सामने मेरे अंदर का सिपाही आया ना, जब ये लोग, मैं इसका स्वागत करता हूँ जो एफआईआर दर्ज हुई। चूंकि हमारा कानून क्या कहता है, जो पहले आईपीसी था, बीएनएस है, सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस है। अगर कोई भी फर्द, इंसान, बंदा लिखित शिकायत लेके जाएगा थाने में किसी जुर्म के, जुर्म हुआ या नहीं हुआ, झूठ है या सच है, तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी है एफआईआर दर्ज करेगी। हम नहीं करते हो दूसरी बात है, लेकिन जब ऐसे सीरियस इल्जाम हो और पब्लिक फिगर पे हो, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और तफ्तीश तो मैं इसको वेलकम करता हूँ, एसआईटी बनी है। और भी अच्छी बात यह है कि पंजाब में नहीं है। नहीं तो एक इल्जाम लगना था कि पंजाब पुलिस तो मुस्तफा के दबाव में आ गई। ये जो चमचुद्दीन है, इसने 2 क्लेम किए कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। आप उससे पूछे, मेरा घर जंगल में है, मलेरकोटले से 2 किलोमीटर बाहर है। मलेरकोटला कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं है, अमरगढ़ हल्के में पड़ता है। तो मेरा पड़ोसी तो कोई भी नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूँ। ये मेरा पड़ोसी कहाँ से आ गया? उसने, मैंने सुना ये भी कहा, वो हमारा रिश्तेदार है। मैं 45 साल से मलेरकोटले में हूँ, या मेरी फैमिली कभी उसकी शक्ल देखी? मेरे पास 18 या 19 में जब हमारी सरकार थी, मेरे 3-4 चाहने वालों को, सपोर्टर्स को लेके आया था हाथ बांध के मेरे दफ्तर में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इस पे बैंक फ्रॉड का एक केस हुआ था, उसमें मदद मांगने मैंने कहा था मैं चूंकि वसूलों के लिए मैं बड़े बड़े हस्तियों से टक्कर लेता हूं, तो मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन नहीं रखता। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं इस काम में मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। ये जो हमारा एमएलए है सिटिंग, उसका पीए है, 3.5 साल तक उसका पीए रहा। 8 महीने पहले उन्होंने निकाल दिया। इसके बारे में मैंने पता किया, इसको निकाला क्यों है, तो सबसे क्लोज था उसका पिछले 20 साल से, बीएसपी में थे, वहां भी साथ थे। तो जो मुझे सुनने में आया भरोसेयोग सूत्रों से, मलेरकोटले में एक कहावत चलती है पिछले 3 साल से कि मलेरकोटले में कोई 500 का नोट नहीं बचा, सारे शमसुद्दीन ने लूट लिए। ये आम लोगों की जुबान है कि 500 का नोट नहीं यहाँ मिलता। अब शायद जाली नोट शमसुद्दीन चला दे। सब लूट लिए इसने। तो जो मुझे सुनने में आया, ये इनकी सरकार ने, हाई कमांड ने, आम आदमी पार्टी के हिदायत जारी की कि इसको, एमएलए को, इसको फौरन निकाले। उन्होंने निकाल फेंका इसे। ये 8 महीने से, इतनी तो इसकी कोई पॉलिटिकल सियासी हैसियत तो है नहीं कि किसी के साथ जाएगा, अपने घर बैठा। पता नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने निकाली 5-4 दिन में, एक और पार्टी का पॉलिटिकल लीडर है, उसकी गोद में बैठा है, बहुत बड़ा लीडर है। मुस्तफा से छोटा मोटा तो आदमी कोई रंजिश नहीं रखता, मुझसे रंजिश टॉप के लोग ही रखते हैं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास।
खालसा मेरो मुख है अंग, खालसे के हों बस्त सद संग।